human reproduction chapter we have completed in last lecture. Now in this lecture we will solve the MCQs from the MTG NEET guide book which is provided to you, and open page number 397, question number 56 onwards. The MCQs of human reproduction are given, and before this we have completed the MCQs of reproduction in flowering plants up to the question number 55. तो इसके पहले 55 क्वेश्चन तक के हम लोगों ने MCQs कंप्लीट किए हैं, वहां तक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के MCQs थे. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56 we are starting. So see the question number 56. Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone known as. तो यहाँ पर सर्टोली सेल का रेगुलेशन पूछा है कि पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन से सर्टोली सेल्स जो हैं रेगुलेट होते हैं. तो सबसे पहले आपको जो है वो सर्टोली सेल का फंक्शन पता होना चाहिए. And we have seen the Sertoli cell in the transverse section of TS of testes में हमने देखा है Sertoli cells. These are the nourishing cells. तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर जो स्पर्मेटिड स्टेज होती है, उस स्पर्मेटिड स्टेज पर जो सेल्स रहते हैं, those cells they come in contact with the Sertoli cells, and the Sertoli cell provide nourishment. And after getting nourished by the Sertoli cell, the differentiation in the spermatid takes place. So a well labeled diagram we have seen in the presentation and also in your textbook, NCERT textbook page number 47. The diagram is given, diagrammatic sectional view of seminiferous tubule. तो उसके अंदर आप देखेंगे तो वहां पर जितने भी सेल्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ और सर्टोली सेल्स वो दिए हुए हैं. उसका रेगुलेशन भी दिया हुआ है वहां पर. तो इसके अंदर आप देखेंगे रेगुलेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 47 पर ही है, और लास्ट के जो 5 लाइंस हैं, मींस जो लास्ट का पैराग्राफ है उस पर वहां पर एक्सप्लेनेशन भी है. उसका टेक्स्ट बुक में ही एक्सप्लेनेशन है. तो यहाँ हार्मोन जो पूछा है वो पिट्यूटरी हार्मोन पूछा है. ऑप्शंस दिए हुए हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, और फोर्थ पर है प्रोलैक्टिन या LTH भी कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन. तो जितने भी हार्मोन्स दिए हुए हैं, ऑल दीज हार्मोन्स आर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, बट वी हैव टू फाइंड आउट दैट हार्मोन which is responsible for regulation of Sertoli cell. तो यहाँ जो important हार्मोन है जो Sertoli cell को रेगुलेट करता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. हमने एक टॉपिक स्टडी किया था रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का. तो उस रेगुलेशन वाले टॉपिक में हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, इट इज कॉल्ड GnRH, गोनेडोट्रोपिन releasing hormone या gonadotrop releasing hormone. That gonadotropic releasing hormone, it stimulates the anterior pituitary to secrete respective hormone, and there are many hormones which are secreted from anterior pituitary. Out of those hormone, follicle stimulating hormone is responsible for providing the nourishment with the help of, or it induce the Sertoli cell when the spermatids get attached to it. So our correct answer is follicle stimulating hormone. Next question number 57. Withdrawal of which of the following hormones is the immediate cause of menstruation? Means इसमें से कौन से हार्मोन का लेवल विड्रॉ होने से, कम होने से मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है
उसका ऑनसेट होता है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफएसएच-आरएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। So we know that the thickness of the uterine endometrium is maintained by thickness of uterine endometrium. So we can understand it with the help of a diagram. Suppose this is the uterine endometrium. So this layer, it is the uterine endometrium and its thickness is maintained by hormone progesterone, which is secreted from the corpus luteum, and nearly at 27 or 28th day the corpus luteum starts deteriorate. So as a result of its degeneration, the level of progesterone hormone become reduced, and since progesterone is the hormone which is responsible for maintaining the constant thickness of the uterus, uterine endometrium more specifically, so as a result of decrease of that hormone, suddenly the blood supply to this endometrium get reduced, and as a result the blood supply get reduced, the cells of this endometrium they start breaking, and due to rupture of the blood vessel it start the onset of menstrual cycle. So the more important hormone here responsible for maintaining the thickness, it is the progesterone, and reduction in the level of the same hormone causes the menses. So out of the options given here, progesterone, estrogen, FSH, FSH-RH, the more relevant option is, the most relevant option is progesterone. So the correct one is option A, progesterone. Next question number 58. Which part of the ovary in mammals acts as an endocrine gland after ovulation? Options are stroma, germinal epithelium, vitelline membrane and Graafian follicle. तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेमेलियन ओवरी में कौन सा पार्ट ओव्यूलेशन के बाद में ग्लैंड की तरह वर्क करता है. स्ट्रोमा वी नो द पार्ट ऑफ द ओवरी. जर्माइनल एपिथेलियम जो है इट इज द आउटर लाइनिंग जो कि क्यूबिकल सेल्स की बनी हुई रहती है. वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो है इट इज द पार्ट ऑफ द ओवम जो ओवम के साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है. तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो है ये ओवरी का पार्ट ही नहीं है. सो वी कैन एलिमिनेट वन और टू ऑप्शन डायरेक्टली. वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को हम डायरेक्ट जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं. डी ऑप्शन जो है इट इज द ग्राफियन फॉलिकल. वी नो आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में जो एम्प्टी फॉलिकुलर सेल्स होते हैं या एम्प्टी फॉलिकल जो होता है, हमने सीक्वेंशियल डेवलपमेंट स्टडी किया है. प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल्स को हमने स्टडी किया है. फॉलिकुलर सेल्स को देखा है, उसके अंदर ओवम के डेवलपमेंटल स्टेज को स्टडी किया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी के टॉपिक में. तो यहाँ पे आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद में जो एम्प्टी फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, दोज एम्प्टी फॉलिकुलर सेल्स they modify themselves and they become secretory and they form a temporary endocrine gland, the corpus luteum, from which the progesterone is secreted. तो यहाँ पे corpus luteum ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है,
यहाँ पर है स्ट्रोमा, जर्माइनल एपिथेलियम, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और ग्राफियन फॉलिकल, ये ऑप्शंस हैं। तो अब इनमें से हमको ये देखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है इनमें से कौन से सेल्स से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम से तो नहीं होगा, क्योंकि उससे जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद जो बचे हुए सेल्स होते हैं, those cells are of the empty follicular cells, वो empty follicle के cells होते हैं, and that empty follicle it is nothing but it is the Graafian follicle। ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल के ही सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके येलोइश टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट करते हैं, जहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्राफियन फॉलिकल। Next, question number 59. In the human female, menstruation can be deferred by the administration of। तो यहां पर कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस हैं, कौन से हार्मोन का कॉम्बिनेशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफर करेगा, डिले करेगा। ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH, सेकेंड है कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है FSH ओनली, डी ऑप्शन है LH ओनली। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो एसोसिएटेड 4 हार्मोन्स हमने ग्राफ में स्टडी किए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें थे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, these are the 2 ovarian hormone, and the rest 2 they are the pituitary hormone, and they are follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। so यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि which of the following combination of hormone they differ the menstruation। तो 2 हार्मोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने डायग्राम में बताया, फॉर मेंटेनिंग ऑफ थिकनेस। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का रोल जो होता है वो प्राइमरी रोल होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इट कैन डिफर द ऑनसेट ऑफ मेंसेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 60। इन ह्यूमंस at the end of the first meiotic division, the male germ cells differentiate into the। फर्स्ट meiotic division के बाद ह्यूमन मेल के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस पर है। हमने जो सीक्वेंस स्टडी की है स्पर्मेटोजेनेसिस की सीक्वेंस, ये पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है। हमने इस टॉपिक को जो है वो 2 तरह से स्टडी किया है। एक तो सेपरेट टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का हमने स्टडी किया, और एक जो है वो कंपैरिजन स्टडी किया था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में। तो एक कंपैरेटिव मैनर में हमने देखा, और एक जो है वो इंडिविजुअल, दोनों के लिए इंडिविजुअल डायग्राम वाइज हमने टॉपिक को स्टडी किया था। और मैंने वहां पर लेक्चर में भी कहा था कि आपको सीक्वेंस याद रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपको सीक्वेंस पता होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप इजीली समझ सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट meiotic division द मेल germ cell differentiate into, ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स, सेकंड है स्पर्मेटोजोनिया दिया हुआ है, सी ऑप्शन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, डी ऑप्शन है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो फर्स्ट meiotic division अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो रिकॉल करिए द सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सीक्वेंस क्या थी? जर्माइनल एपिथेलियम जो टेस्टिस की होती है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की होती है, वहां से सेल्स जो है कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। स्पर्मेटोगोनिया कई बार जो है माइटोसिस करते हैं और बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। फिर वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं
उनके अंदर होता है फर्स्ट मियोसिस और उससे बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड होते हैं। फर्स्ट मियोसिस हो गया है क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 2, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्योंकि मियोसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। और मियोसिस 1 जो है ये एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है और मियोसिस 2 जो है वहां पे फर्दर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता। तो मियोसिस 2 जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर और ओजेनेसिस में सेकेंडरी ओसाइट में होता है और इससे बनते हैं स्पर्मेटिड। अगर ओजेनेसिस चल रहा है तो ओटिड बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर स्पर्मेटिड्स के अंदर उसका डिफरेंशिएशन होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटिड जब कांटेक्ट में आते हैं सेरेटोली सेल के तब स्टार्ट होता है और फिर उनके अंदर उनका जो मिडल पीस है और फ्लैजिला है वो सब जो है फॉर्म होता है। तो डिफरेंशिएशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां ये मैंने पूरा सीक्वेंस समराइज कर दिया है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, मेल जर्म सेल्स जो है वो किसमें डिफरेंशिएट होते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड पर। ऑप्शन है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में और ये डिफरेंशिएट होकर बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन है स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सिक्रीट वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी है कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, सी है इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, डी है स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ह्यूमन एडल्ट फीमेल में ऑक्सीटोसिन कहां से सिक्रीट होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है, देखिए एक ऑप्शन तो दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं एक ऑप्शन तो इसमें से, इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये तो है नहीं क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, दो ही हार्मोन है पोस्टीरियर से, एक ऑक्सीटोसिन है और एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और कुछ रेयरली रिलीजिंग फैक्टर है जैसे कोहेरीन वगैरह है। तो यहां पे ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन के लिए जो है यहां एक ऑप्शन डी भी दिख रहा है कि स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो है इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ एलटीएच हार्मोन एंड अदर टू सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां पर एलटीएच जो हार्मोन है वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन पूछा है, बहुत कॉमन है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है इट इज ऑप्शन बी, कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पर मतलब बर्थ के टाइम पर जो यूटेराइन मसल्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट करता है ये ऑक्सीटोसिन जो होता है और ये कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को और बर्थ का जो प्रोसेस है वो इसकी वजह से फैसिलिटेट हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन या क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का जो है वो इंजेक्शन भी लगाया जाता है बिफोर पार्चुरेशन, अगर पार्चुरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मेडिकल स्टोर्स में जो है ये पिटोसिन के नाम से बिकता है। तो पिटोसिन जो है इट इज द सिंथेटिक वर्जन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, causes strong uterine contraction during parturition। क्वेश्चन नंबर 62 है, which of the following statement is incorrect about menstruation। ऑप्शन सुन लीजिए। at menopause in the female
there is especially abrupt increase in gonadotropic hormone. दूसरा है the beginning of the cycle of menstruation is called menarche. C ऑप्शन है during normal menstruation about 40 ml of blood is lost. D ऑप्शन है the menstrual fluid can easily clot. तो यहां हमको ये चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन देखना है जो इनकरेक्ट है। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग जो है वो एनालाइज करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो हम इसमें देखते हैं एनालिसिस करके फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन। ओके, तो यहां जो है वो ऑप्शन जो दिए हैं उसमें पहला जो ऑप्शन है इट इज एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सडन इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोला गया है एट मेनोपॉज। सो मेनार्की हमने देखा इट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज जो है वो टाइम होता है फीमेल का 45 से 50 इयर्स के बीच में, जब धीरे धीरे जो मेंसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होती जाती है और हार्मोनल चेंजेस भी जो है वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं होते, पर्टिकुलरली वो हार्मोन जो कॉज करते हैं मेंसेस को। तो यहां पर ऑप्शन में बोला है एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इंक्रीज बोला गया है, एब्रप्ट यानी सडन इंक्रीज बोला गया है। तो मेनोपॉज पे सडन इंक्रीज या इंक्रीज नहीं होता। जो हार्मोन्स होते हैं स्पेशली वो हार्मोन्स जो मेंसेस से रिलेटेड हैं, उनके फीमेल के जो सेक्सुअल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एफएसएच है, एलएच है, इनका जो लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और दूसरे भी कुछ चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आना स्टॉप हो जाती है। तो ये ऑप्शन में इसके अंदर हमको बोला गया इंक्रीज बोला गया, तो इंक्रीज तो नहीं होता, डिक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन हम इलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन जो बिगिनिंग है ऑनसेट है उसको मेनार्की कहते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 to 45 ml ब्लड इज लॉस्ट, सो इट इज आल्सो करेक्ट। हमको इनकरेक्ट देखना है। डी ऑप्शन जो है उसमें कहा गया है द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के अंदर ब्लड तो होता ही है, ब्लड के साथ में कुछ यूटेराइन एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, कुछ ब्रोकन एपिथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, ट्रेसेस में जो है वो कुछ हार्मोन्स भी होते हैं उसके अंदर। मोर इंपॉर्टेंटली उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है इट इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिन। सो दैट फाइब्रिनोलाइसिन उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो इतना इजीली क्लॉट नहीं होता। तो फाइब्रिनोलाइसिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको डिसॉल्व करवा देता है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इतना इजीली क्लॉट नहीं होता। तो यहां ऑप्शन में दिया गया द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, ऐसा है, जबकि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इतना इजीली क्लॉट नहीं होता अगर उसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग से कंपेयर करें तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर है 63, which extra embryonic membrane in human prevents desiccation of the embryo inside the uterus। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हमने अलग अलग मेम्ब्रेन पढ़ी है, जैसे एमनियन है, कोरियन है, एलेक्ट्रॉइड्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ह्यूमन एम्ब्रियो में जो कि
एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाती है, उसको ड्राई होने से, सूखने से बचाती है। We know the amnion membrane. Inside the amnion there is a fluid called amniotic fluid, जिसको amniocentesis के टाइम पर जो है वो निकाल करके फीटल एबनॉर्मलिटीज को टेस्ट किया जाता है। तो वो जो फ्लूइड होता है, that fluid it maintains the hydrostatic pressure surrounding to the embryo and simultaneously वो एम्ब्रियो को जो है डेसिकेट होने से भी बचाता है। तो इसके अंदर जो है जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एमनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा किस चीज में रिच होता है? सेमिनल प्लाज्मा हमने स्टडी किया है, किसको कहते हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथरल ग्लैंड्स हैं, तो उनसे एसोसिएटेड उनके सिक्रीशंस जो रहते हैं, उस पूरे सिक्रीशन, उस मिक्सचर को कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, ऑप्शंस आर फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम, दिस इज सिंगल ऑप्शन। Second is glucose and certain enzyme but has no calcium. C option is fructose and certain enzyme but poor in calcium. Poor in calcium नहीं होता, कैल्शियम आयंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज कैल्शियम आयन दे हेल्प ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो ऑप्शन है ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट हैज नो कैल्शियम, ये ऑप्शन को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे एक ही कंसेप्चुअल नॉलेज की बेसिस पर। सी ऑप्शन में दिया है फ्रुक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, तो दोनों ही ऑप्शन नियर अबाउट जो है वो सेम ही है। एक में जो है वो नो कैल्शियम बोला है, एक के अंदर पुअर इन कैल्शियम कहा गया है, तो दोनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन जो बोला है वो है फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं बोला गया, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स। और ऑप्शन डी में कहा गया फ्रुक्टोज कॉमा कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो फ्रुक्टोज तो प्रेजेंट रहता है जो कि सेमिनल वेसिकल से आता है और ये स्पर्म्स को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट, कैल्शियम इज आल्सो देयर एंड देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो बाद में फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवम के साथ, ओवम के अंदर पेनिट्रेट करवाने में। So option D is correct, fructose, calcium and certain enzymes. Next question number 66 है, वहां एक डायग्राम दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है डायग्राम, और लेबलिंग किया जो है वो ग्लैंड्स को लेबल किया है। आप देख सकते हो उसमें ग्लैंड्स को A B C D लेबल किया है और एक ट्यूब को लेबल किया गया है। तो यहाँ पर given below is a diagrammatic sketch of a portion of human male reproductive system. Select the correct set of names of part labeled as A, B, C, D. So option A है, वहां पर लिखा गया है A vas deferens, B seminal vesicle, C prostate gland, D bulbourethral gland. ऑप्शन B के अंदर है A vas deferens, B seminal vesicle, C bulbourethral gland and D is prostate. ऑप्शन C है A ureter, B seminal vesicle, C prostate and D bulbourethral gland. ऑप्शन D में देखिए दिया हुआ है A ureter और B के लिए prostate है, C seminal vesicle है और D bulbourethral दिया गया है। तो यहां पर इजीली आइडेंटिफाएबल जो लेबल है, आप सबसे पहले इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस करें या कि फिर मेन एग्जाम जब आप अपीयर करेंगे उसके अंदर, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर रहते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 4 लेबल दिया हुआ है तो उसमें से 2 लेबल ऐसे होते हैं जो इजीली आइडेंटिफाएबल होते हैं। मिनिमम 2 लेबल तो जरूर ऐसे होते हैं जो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है तो। और अगर 4 में से 2 आइडेंटिफाएबल होते हैं तो 2 ऐसे होते हैं जो इजीली आइडेंटिफाएबल नहीं होते या कि
थोड़ा मिसलीडिंग टाइप के, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप कोशिश करें, ऑप्शन एक बार आप सरसरी तौर से देखने के बाद में डायरेक्ट फिर डायग्राम पर देखें कि आप इजीली कौन सा लेबल पहचान सकते हैं, डायरेक्ट कौन सा पहचान सकते हैं। तो यहां पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए जो है ना, ए को लेबल ए को एक ऑप्शन में जो है वो यूरिथ्रा लिखा हुआ है और एक ऑप्शन में उसको यूरेटर लिखा गया है और एक ऑप्शन में उसके लिए वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वास डिफरेंस के बाजू में एक और डक्ट आप देख रहे हैं और फिर वास डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली आगे आकर के प्रोस्टेट के अंदर ओपन हो रहा है। सेमिनल वेसिकल के डक्ट उसी से जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। तो जब सेमिनल वेसिकल के डक्ट उससे कंबाइन होते हैं तो उससे एक और छोटा डक्ट बनता है जिसको इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो इजाकुलेटरी डक्ट भी एक बार पूछा है पेपर में, लेकिन वो एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं है उसकी। लेकिन हमने जो डायग्राम स्टडी किया था वो थोड़ा डिटेल लेबल डायग्राम था। हमने दो तीन डायग्राम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव के लिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव के लिए स्टडी किए। तो इसलिए उनको स्टडी किया है कि जो एनसीईआरटी के लेबल है पहले मैंने वो दिखाए थे आपको प्रोजेक्टर पर स्लाइड के अंदर, और उसके बाद में जो एनसीईआरटी में जिनको लेबल नहीं किया है लेकिन प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको वो वाले डायग्राम भी दिखा दिए थे ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ए जो है, ए वो वास डिफरेंस है, टेस्टिस नहीं दिखाया है क्योंकि अगर टेस्टिस शो करेगा तो इजीली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, टेस्टिस से आने वाला डक्ट हो जाएगा वो वासा डिफरेंशिया। तो यहां पे टेस्टिस को शो ही नहीं किया है, एक पार्ट एक पोर्शन दिया है। सो ए जो है इट इज वास डिफरेंस और बी जो है वो पेयर्ड ग्लैंड है साइड में, उसके पीछे यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाया गया है। तो बी जो है वो क्या है, सेमिनल वेसिकल है जहां से फ्रुक्टोज कंटेनिंग फ्लूइड जो सीमन या सेमिनल प्लाज्मा है वो रिलीज होता है। सो सेमिनल वेसिकल बी है पेयर्ड ग्लैंड और सी जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और डी भी इजीली आइडेंटिफाएबल है। दो लेबल बहुत आसानी से आइडेंटिफाएबल है, एक तो ए वासा डिफरेंशिया और एक बी क्योंकि जस्ट लोकेटेड अबो टू द पेनिस है वो या यूरिथ्रा के साइड में है। तो इट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, याद करिए। और मैंने एक नाम बताया था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के लिए, अगर याद आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको याद आना चाहिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। तो डी जो है बहरहाल यहाँ पे सभी ऑप्शन में जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ही दिया हुआ है। तो डी जो है इट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सी इज प्रोस्टेट ग्लैंड, बी सेमिनल वेसिकल एंड ए इज वासा डिफरेंशिया। तो आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है इस लेबल के साथ में करेक्टली मैच्ड है। तो हमारी इस सीक्वेंस में ए वासा डिफरेंशिया दिया हुआ है दो ऑप्शंस में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी तो एक ही लेबल को आइडेंटिफाई करने से एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो बी जो है वो लिखा है सेमिनल वेसिकल और ऑप्शन बी में भी बी को सेमिनल वेसिकल लिखा है। फिर आपको ऑप्शन सी आपको सी लेबल देखना पड़ेगा, सी के लिए प्रोस्टेट लिखा है ऑप्शन ए में और बी में बल्बो यूरेथ्रल लिखा है। तो सिंपल बोलने का ये मतलब है कि अगर आप वासा डिफरेंशिया पहचान लेते हैं और डी बल्बो यूरेथ्रल पहचान लेते हैं तो आपको अगर मान लो किसी को बी और सी लेबल में कंफ्यूजन हो रहा है कि सेमिनल वेसिकल कहां पर है या प्रोस्टेट कहां पर है, तो उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर चार लेबल दिए तो दो इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं क्योंकि इस चीज को जो है वो कंसीडर करके ही लेबलिंग की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर आपको और मिलेंगे। यहां पर आगे भी हमारे डेटा के अंदर भी और क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, fetal ejection reflex in human female is induced by। fetal ejection reflex जो है ये कैसे इंड्यूस होता है? fetal ejection reflex मतलब ये पार्चुरेशन से पहले की स्टेज है कि कहां से उसका सिग्नल आता है। तो हमने पढ़ा है पूरा टॉपिक सीक्वेंस में fetal ejection reflex पार्चुरेशन का टॉपिक में। तो यहां पर ए है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी,
बी है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, सी है डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डी है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एम्नियोटिक फ्लूइड। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है ये कहां से स्टार्ट होता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से स्टार्ट होता है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस का जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इट स्टार्ट सिक्रीटिंग एसीटीएच हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर वो जाकर के पिट्यूटरी फीटस के एड्रिनल ग्लैंड को टारगेट करता है और वहां से फिर जो है जो रेस्पेक्टिव हार्मोन है एड्रिनल के वो निकलना स्टार्ट होते हैं। फिर वो प्लेसेंटा को डिफ्यूज करते हैं और प्लेसेंटा उसके रिस्पांस में फिर अपने हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करता है। फिर उसके रिस्पांस में मदर का पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करना स्टार्ट करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीटोसिन मैंने बताया पिटोसिन भी इसको कहते हैं क्योंकि सिंथेटिक वर्जन इसका जो है वो पिटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो लूप होता है एंडोक्राइन का वो पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है। जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितना यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतना पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज फुल्ली डेवलप्ड फीटस और मदर की तरफ से उसका प्लेसेंटा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, the correct sequence of spermatogenetic stage leading to the formation of sperm in a mature human testis। अगेन ये क्वेश्चन फिर सीक्वेंस के ऊपर है। मैंने 3 बार जो है वो सीक्वेंस रिपीट किया है। 2 बार मैंने टॉपिक पढ़ाने के टाइम पर कहा था कि सीक्वेंस याद रखिए और अभी ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या है। तो मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो हो सकता है डायरेक्ट आपके दिमाग में करेक्ट सीक्वेंस आ जाए। ऑप्शन ए इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म। बी है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म्स। सी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म। एंड डी इज स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म। तो हमको पता है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइट ये तो बीच के इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। शुरुआत जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया से होती है। तो 2 ही ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया वाले, बाकी के 2 ऑप्शन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको एक नाम भी याद है। मतलब पहली स्टेज पे अगर याद है तो आपके लिए 2 ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। सो स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होता है, उसके बाद में फिर स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। डायरेक्ट स्पर्मेटोसाइट दिया हमको पता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी होता है। तो सीक्वेंस और लंबा ना हो इसलिए डायरेक्ट स्पर्मेटोसाइट ही कह दिया है। इट इज वेरी सिंपल, स्पर्मेटोगोनिया देन स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड के बाद में फिर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following is the most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycling human female। तो ये क्वेश्चन है, ओल्डर क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, बिफोर 2012 ही पूछा गया है और जितनी बार भी पूछा गया एआईपीएमटी में ही पूछा गया, अब तक नीट में तो नहीं है। यहाँ थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है, हार्मोनल लेवल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज, सबसे लाइकली रूट कॉज क्या है कि जो साइक्लिंग फीमेल्स हैं, ना सिर्फ साइक्लिंग फीमेल बल्कि जो एथलेटिक फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिले हो जाती है। तो उसके डिले होने का जो रूट कॉज है वो ऑप्शंस में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, सी है रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, डी है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो यहां भी एक ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम हुआ हो क्योंकि फीमेल है, अनमैरिड फीमेल है तो फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं आती। और एक यहां पर है रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम। वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम कब बनेगा? जब ओव्यूलेशन होगा।
तो यहाँ ओव्यूलेशन भी जो है वो डिले हो रहा है, तो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसके रिटेन होने की या उसके मेंटेन होने का भी जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब हम चाहे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ज्यादा रिलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, हाइपरट्रॉफिकल मतलब एंडोमेट्रियम हमने स्टडी किया है, 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यूटेरस की। तो उसके लिए हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, हाइपरट्रॉफिकल मतलब कि हाईली पीडी या थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एक ये ऑप्शन है, रिलेट हो रहा है ऑप्शन, दो ऑप्शन बहुत क्लोजली रिलेट हो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो पूछा गया है, वो बोला गया है मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही है ब्लड स्ट्रीम में। तो इसमें हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियम जो है इट मे बी वन ऑफ द कॉज ऑफ नॉट स्टार्टिंग द मेंसेस। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही ट्रू लग रहे हैं हमको ऐसे तो, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन बी में ये सोचना है कि कौन सा इवेंट किसकी वजह से होता है। अगर आप ये सोचें कि हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग की वजह से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ता है, तो ऐसा तो नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले बढ़ता है और उसकी वजह से मेंटेनेंस होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। तो बहुत थियरी का जो की कॉन्सेप्ट है उस की कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में या किसी भी टेक्स्ट बुक में, लेकिन इसके रिलेवेंस में लाइन आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग या के जो नॉट ऑनसेट ऑफ मेंसेस है उसका जो मेन रीजन है दोनों में से, ए और बी में से, वो है यहाँ पे फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, और उसकी वजह से फिर यूटेराइन एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं हो पाती और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन नहीं हो पाती है। तो ये है करेक्ट ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, a change in amount of yolk and its distribution in the egg will affect। amount of yolk और उसके चेंज से किस चीज के ऊपर इफेक्ट होता है। ऑप्शन है पैटर्न ऑफ क्लीवेज, सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स प्रोड्यूस, सी है फर्टिलाइजेशन, डी है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो अमाउंट ऑफ यॉक डिसाइड करता है प्लेन ऑफ क्लीवेज को और पैटर्न ऑफ क्लीवेज को। अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के जो है वो एग्स होते हैं, मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज है, होलोब्लास्टिक, इक्वल, होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, इस तरह के क्लीवेजेस होते हैं। और ये जो टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं, ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ एग पर, और टाइप ऑफ एग जो क्लासिफाइड है वो है अमाउंट ऑफ यॉक के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ यॉक के हिसाब से भी अलग अलग टाइप के जो है वो एग्स होते हैं, अलेसिथल है, माइक्रोलेसिथल है, टिलोलेसिथल है, इस तरह के अलग अलग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एग होता है इट इज अलेसिथल और माइक्रोलेसिथल। कुछ बुक में आपको अलेसिथल मिलेगा, कुछ बुक में माइक्रोलेसिथल, मींस हैविंग अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक। अमाउंट ऑफ यॉक जो है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि बाद में प्लेसेंटा बनने वाला है। तो जो भी नरिशमेंट है, ओवरऑल नरिशमेंट जो वो प्लेसेंटा से मिलने वाला है। तो बर्ड्स के अंदर या रेप्टाइल्स के अंदर जो एग होता है इट इज रिच इन यॉक, क्योंकि वहां पर प्लेसेंटा नहीं बनता, क्योंकि वो प्लेसेंटल एनिमल्स नहीं है। तो वहां पे जो पूरा यंग वन है, जो एम्ब्रियो है, जिसकी डेवलपमेंट है, वो फीड करता है यॉक के ऊपर और उससे उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैमल्स के अंदर जो एग है, ओवम जो है, ये बाहर ले भी नहीं होता और प्लेसेंटल होते हैं। तो प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा फॉर्म होता है। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं फॉर्म होता है तब तक के जो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक होता है उसी को यूज करके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनाते हैं। क्लीवेज होने के बाद में पहले ब्लास्टोला, फिर उसके बाद पहले मोरुला, फिर ब्लास्टोला, फिर गैस्ट्रोला, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, और उसके बाद में फिर ऑर्गन फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और तब तक के फिर प्लेसेंटा भी बन जाता है, प्लेसेंटा फिर फीड करवाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ यॉक के ऊपर। और ह्यूमन बीइंग के अंदर आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग का याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन का ही पूरा डिटेल दी हुई है। बस एडिशनल नॉलेज के तौर पर रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एक को याद रखिए।
तो यहां जो है अमाउंट ऑफ यॉर्क इज वेरी लेस, वेरी लिटिल, तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो यॉर्क, डायरेक्टली बोल सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉर्क है। तो जो क्लीवेज होता है इट इज होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, मतलब पूरा जो प्लेन है वो डिवाइड करता है न्यूली फर्टिलाइज्ड ओवम को दो इक्वल हाफ्स में। सो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर पैटर्न ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट है सर्टोली सेल, उसके बाद का क्वेश्चन है 71। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, इट इज वेरी सिंपल। सर्टोली सेल कहां पड़ी, लोकेशन पूछा गया है। ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सीक्रेट एड्रेनालिन भी नहीं है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल, ये ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैंक्रियाज दिया हुआ है क्योंकि, तो पैंक्रियाज में तो नहीं होता सर्टोली सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो करेक्ट ऑप्शन है प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है द फर्स्ट मूवमेंट of the fetus and the appearance of the hair on its head are usually observed during which month of pregnancy? Appearance of hair on head और movement of fetus कौन से मंथ से एक्टिवली मूव होना स्टार्ट कर देता है fetus? तो ऑप्शन है बस मंथ में है, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th एंड 3rd मंथ। तो 3rd मंथ तक तो नहीं है, अर्ली हो जाएगा बहुत। इट इज इन बिटवीन 4th एंड 5th मंथ होता है, तो अब 4th और 5th दोनों ही दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी की लाइन है 5th मंथ लिखा हुआ है वहां पे कि हेड के ऊपर हेयर जो है वो अपीयर होते हैं 5th मंथ से। तो आप लाइन पकड़ करके चलिए, तो 5th मंथ उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बनता है। आपको दिया एनसीईआरटी में, आप देख लेना। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए पेज नंबर बता देता हूँ कहां पर है। हाँ, ये है पेज नंबर 54 पर पार्चुरेशन और लैक्टेशन वाला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 नीचे से 5वीं लाइन है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। समझे? तो सीधी एनसीईआरटी की लाइन ही उठा करके पूछ दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। फैलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा, वो पार्ट जो कि ओवरी के सबसे नजदीक है। ऑप्शन है इस्थमस, इंफेंटिबुलम, सर्विक्स, एम्पुला। तो बहुत सिंपल है, सर्विक्स तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है नहीं, तो ऑप्शन सी तो चला गया। अब बचा इंफेंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो इंफेंटिबुलम है, फनेल शेप जो स्ट्रक्चर है और जिसके टर्मिनल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इंफेंटिबुलम। उसके ऊपर जो है एम्पुला है जहां पर फर्टिलाइजेशन मोस्ट लाइकली होता है, और फिर उसके बाद में कनेक्टिंग पार्ट है इस्थमस। तो सबसे करीब कौन सा, ओवरी के सबसे करीब कौन सा पार्ट है यहाँ पे, इंफेंटिबुलम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, signals from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition which requires the release of, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है parturition में? ऑप्शन है estrogen from placenta, oxytocin from maternal pituitary, then C है oxytocin from fetal pituitary, D है relaxin from placenta. So it is directly oxytocin from maternal pituitary. नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड है। If for some reason the vasa efferentia in human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from. If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, अगर किसी वजह से vasa efferentia ब्लॉक हो जाए तो the gametes will not be transported from, कहां से कहां गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ये भी सीक्वेंस पर क्वेश्चन है, और ये एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके सीक्वेंस पर है। ऑप्शन है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू वासा डिफरेंशिया, सी है ओवरी टू यूटेरस, वजाइना टू यूटेरस। तो नहीं है, दोनों ही नहीं है, नीचे के दोनों सी और डी ऑप्शन, ओवरी टू यूटेरस, वजाइना टू यूटेरस नहीं है। यहां पर
हमको सीक्वेंस पता होना चाहिए अगेन एनाटॉमिकल, जो मैंने एलएस बताया था डायग्राम में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद में रेटिटेस्टिस है, फिर रेटिटेस्टिस से वासा इफरेंशिया है, फिर वासा इफरेंशिया ओपन होते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस में, फिर उसके बाद में कॉर्पस एपिडिडाइमिस है, कॉर्डा एपिडिडाइमिस है, वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया के बाद में फिर जो है जैकुलेटरी डक्ट है, फिर उसके बाद में फिर अपना पेनिस है, पेनाइल यूरिथ्रा पूरा जो पार्ट है। तो ये सीक्वेंस है, इसको याद रखिए, डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बनता है टेस्टिस टू एपिडाइमिस, क्योंकि टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में ही आता है वासा डिफरेंशिया, और उसके पहले रेटिटेस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 85 में। तो ये जो डायग्राम है, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ ग्रामेटिकल sectional view of the human female reproductive system, which set of 3 parts out of 1 to 4, 1 से 4 तक लेबल किया है, have been correctly identified। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, पहले एक सरसरी नजर। ऑप्शन ए में देखिए आगे पीछे ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेकंड एंडोमेट्रियम, थर्ड इंफेंडिबुलम, फोर्थ फिम्ब्रिया। ऑप्शन बी में है थर्ड इंफेंडिबुलम, फोर्थ फिम्ब्रिया, फिफ्थ सर्विक्स। हर एक के अंदर अलग अलग नंबर हैं। सी में दिया हुआ है फोर्थ ओवी ड्यूकल फनेल, फिफ्थ यूटेरस और फोर्थ सर्विक्स। डी है फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, थर्ड फैलोपियन ट्यूब। आप देखिए डायग्राम तो आप पेज नंबर 399 पर देख सकते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से जो इजीली आइडेंटिफाएबल है वो कौन सा है? देखिए फर्स्ट वाला क्या है, यूटेराइन वॉल है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पेरीमेट्रियम इसमें दिया हुआ है, बट सेकंड जो है वो मायोमेट्रियम नहीं है। और थर्ड जो है, ऐसे तो फैलोपियन ट्यूब लिखा है थर्ड के लिए, लेकिन फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट जो है वो लेबल किया है। तो बहुत क्लोजली एग्जामिन करना है आपको इस डायग्राम को। इसमें और हमको क्या दिखा है, फिफ्थ जो है वो भी आसानी से आइडेंटिफाई होने वाला पार्ट है, फिफ्थ सर्विक्स पार्ट है। और सिक्स्थ जो है वो वजाइना है। तो यहां पर सिक्स्थ वजाइना तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फिफ्थ सर्विक्स एक ऑप्शन में दिख रहा है, फिफ्थ के लिए सर्विक्स दिख रहा है एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। हाँ, तो इससे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। फोर्थ जो है वो फिम्ब्रिया है, ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे ही लेबल किया है। और थर्ड वो फनेल शेप पार्ट है इंफेंडिबुलम, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा डायरेक्ट। फिफ्थ सर्विक्स, फोर्थ फिम्ब्रिया, थर्ड जो है इंफेंडिबुलम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है इस तरह से। सो बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखिए। About which day in a normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH, popularly called as the LH surge? ये वर्ड भी याद रखिए, आया है एनसीईआरटी में। कौन से दिन पर LH सर्ज कॉज होता है? नॉर्मली बताया गया एवरेज फीमेल के लिए। ऑप्शन है 14th डे, 20th डे, 5th डे, 11th डे। तो ओव्यूलेशन कॉज करता है, कौन कॉज करता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये होता है एलएच सर्ज की वजह से। तो एलएच सर्ज जो है ये होता है 14th डे पर, और इसके अंडर इन्फ्लुएंस ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन 5वीं बार आया है इतने में, और कई बार पूछा गया एग्जाम में। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कहां से स्टार्ट होता है? ऑप्शन सेम है, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, पहला ही ऑप्शन है और यही करेक्ट भी है। तो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए।
द लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। ह्यूमन बॉडी के जो लेडिक सेल्स हैं वो कौन सी चीज को सिक्रेट करते हैं? लेडिक सेल्स को और क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, बी ऑप्शन है इंटेस्टाइनल म्यूकस, सी ऑप्शन है ग्लूकागॉन, डी ऑप्शन है एंड्रोजन्स। तो यहां पे लेडिक सेल्स जो ह्यूमन बॉडी में से पाए जाते हैं टेस्टिस में, वो क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो नाम यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन तो नहीं दिया ऑप्शन में, बट टेस्टोस्टेरोन और उसके जैसे केमिकल नेचर वाले जो अदर हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एंड्रोजन्स। एंड्रोजेनिक हार्मोन मतलब मेल कैरेक्टर इंड्यूसिंग हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एंड्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज shown below as well as the related right place of its occurrence in a normal permanent woman and select the right option for the two together। एक स्टेज दिखाई गई है, वो पहचानना है और ये पहचानना है कि वो स्टेज फीमेल की बॉडी में कहां पर आती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में कहां पर आती है। तो एक डायग्राम इसके लिए भी जो है वो आपको दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 52 पर जो डायग्राम दिया हुआ है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अब यहाँ वो कंप्लीट डायग्राम तो नहीं है, अब हमारे क्वेश्चन में 92 पर कंप्लीट डायग्राम नहीं है, पार्ट ऑफ द डायग्राम इज गिवन। तो वो पार्ट ऑफ द डायग्राम जो है उसका कंप्लीट डायग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो 52 पर आप देख सकते हैं, वहां से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो पहले तो इजीली आप ये पहचान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ब्लास्टोसिस्ट, स्टेज है ब्लास्टोला, स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट। डेवलपमेंटल स्टेज में देखिए डायरेक्ट समझ में आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन में ऑप्शन नहीं है, सिंगल ऑप्शन है। सो दिखने में क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर डिफिकल्ट देख के ही कोई छोड़ दे क्वेश्चन तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्ट जो है आप देखिए कि स्टेज कौन सी है और जैसे ही आप स्टेज पहचान लेते हैं वो स्टेज पहचानने के बाद में आपको उसका करेक्ट रिलेवेंस मिल जाता है। सो इट इज ब्लास्टोसिस्ट और पोजीशन मिल जाती है यूटेराइन वॉल, एंडोमेट्रियम मतलब। नेक्स्ट नीट के कंटिन्यू 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? ये हमने सॉल्व किया इसके पहले, तो करेक्ट सीक्वेंस हमको पता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 95 भी नीट का क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, क्या कम होता है? तो मेंसेस आते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोजेस्टेरोन। देखिए कितना सिंपलीफाइड और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, तीनों ही इजी है। 96 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा के हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, तो उससे कोरिलेट करते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। और यहां पर देखिए पहला है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, एक्सक्रीशन तो उसका फंक्शन है। बी है सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। सी है फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। डी है सीक्रेट एस्ट्रोजन। अब थोड़ा एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है प्लेसेंटा से, तो वो उसके फंक्शन में काउंट होगा। तो इसके लिए आपको दिया ही है, पेज नंबर 53 पर पूरी लाइन है। तो प्लेसेंटा से क्या क्या रिलीज होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL कहते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, रिलैक्सिन भी रिलीज होता है। तो यहाँ क्या रिलीज नहीं होता? ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता, क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। तो ये तीनों नीट के क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 103 देखिए, which of these is not an important component of initiation of parturition in human? पार्चुरेशन के लिए क्या जरूरी नहीं है? पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशियो, चौथा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिक्वायर होता है
प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क सिंथेसाइज करने के लिए रिक्वायर होता है, तो पार्चुरेशन के टाइम पर इसकी जरूरत नहीं होती। सो ऑप्शन बी इज इररिलेवेंट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105, which of the following layers in an antral fluid is acellular? एंट्रल फ्लूइड में कौन सी लेयर जो है वो असेलुलर होती है, मतलब जहां सेल नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होती है। तो ऑप्शन है स्ट्रोमा, जोना पेलुसिडा, ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना। तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा को छोड़ के बाकी जो लेयर्स है सब सेलुलर होती हैं। तो जोना पेलुसिडा ट्रांसपेरेंट जोन होता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको कहते हैं कि अगर जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम को छोड़कर या एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं किसी और जगह इंप्लांट हो जाए, जैसे फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट हो जाए, तो ऐसी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक के बाद में उसका सडनली एबॉर्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूटेरस, तो ये एक्टोपिक नहीं है। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, ये भी नहीं है। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूटेरस, तो डी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक के हमने जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज जो है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हमने सॉल्व किए, मैक्सिमम एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए। कुछ ऐसे एमसीक्यूज को हमने स्किप किया है जो रिपीट हुए हैं। उसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एमसीक्यूज। तो एक ही चैप्टर जो है वो रिमेनिंग है हमारे रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड करते हैं।